हो गया. Hello, good morning everyone and welcome to Safalta.com. So as you know, it is our first class on YouTube. So today we'll be discussing about basics of graphic design. So today's topic is about graphic design and the basics of it. So we'll be learning from scratch of it, and then we'll be learning more information about before we start getting into the software part. Okay. So I hope I am clearly audible and clearly visible to all of you. So let's just start and move into our first session. So if we just talk about what is graphic design, so but before that, let me just tell you what are graphics. Okay. So moving further, we will let to know about what are graphics. So before moving into the slides, let me just give you one idea about it. So graphics are any visual thing or any visual thing that you see on a screen or on a surface is called graphics. And it can be either a photograph, as you can see a printed photograph, or an image on a digital screen. Even if you see a drawing on a paper, or even if you see a digital drawing on a digital screen, that those everything or all of everything are part of the graphics. Okay. So let's move further and let's see what we can know more about it. Okay. So graphics are visual images or designs on some surface such as wall, canvas, screen, paper, stone, just to inform a message or communicate a message. Now these can be lines, shapes, text, images, icons, any kind of thing that is visible on a screen or on a surface is called graphics. Now these are different type of graphics that you can see. So let's just move forward. I hope you understood till now that what are graphics. So let's just move forward and let's see. There are two types of graphics that are categorized in digital graphics. So प्रिंट ग्राफिक्स की हम अभी बात नहीं कर रहे, जो कि प्रिंटेड पोस्टर, प्रिंटेड इमेजेस, प्रिंटेड फोटोग्राफ्स होते हैं. अभी अगर हम डिजिटल ग्राफिक्स की बात करें, जो आप डिजिटल स्क्रीन्स और मॉनिटर्स पे देखते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें दो टाइप्स के वो ग्राफिक्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में बनाते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफिक्स इज रास्टर ग्राफिक्स. सो रास्टर ग्राफिक्स is composed of pixels. Now it might be confusing a little bit and we will just move into the further discussion about it, in depth discussion. So raster graphics में क्या होता है, raster images जो होती हैं उसमें वो pixels से बनी होती हैं. If you are not aware about pixels, we will also learn that in some time. हम उसे भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि raster graphics या raster images पिक्सल्स के कंपोज होते हैं. वो पिक्सल्स को एक साथ हम यूज़ करके एक इमेज को फॉर्म करते हैं, वो रास्टर ग्राफिक्स से लाया जाता है. आप रास्टर ग्राफिक्स के फॉर्मेट्स भी देख सकते हैं, .psd, .bmp, jpeg, png, gif और टिफ. आप में से कुछ लोगों को तो ऑलरेडी ये सारे फॉर्मेट्स के नाम भी पता होंगे, फुल फॉर्म. तो psd इज़ ए फुल फॉर्म फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट. Bitmap is BMP is for bitmap, JPG joint photographic graphics, then PNG for post scripted graphics, then GIF is for graphic interchange format. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं आपके रास्टर ग्राफिक्स के. अभी चलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स. तो वेक्टर ग्राफिक्स में क्या देखते हैं हम, वेक्टर ग्राफिक्स बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली प्रिंट कराने के लिए, और वेक्टर ग्राफिक्स बनते हैं वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर में यूजिंग मैथमेटिकल लाइंस एंड कर्व्स. हम उसमें पिक्सल्स के साथ वर्क नहीं करते, हम उसमें किस चीज़ के साथ वर्क करते हैं, मैथमेटिकल लाइंस एंड कर्व्स. अब उसमें हम .ai, .svg, .eps एंड .pdf फाइल फॉर्मेट यूज़ करते हैं उनको सेव करने के लिए. वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज़ Photoshop, Adobe Photoshop, जो कि मोस्ट पॉपुलर Photoshop इज़ द सॉफ्टवेयर फॉर रास्टर ग्राफिक्स, जिसमें आप पिक्सल्स और रास्टर इमेजेस के साथ वर्क करते हो, एडिट करते हो. सिमिलरली अगर हम वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा नाम 2 सॉफ्टवेयर्स का आता है. अगर हम Adobe के सॉफ्टवेयर की बात करें तो दैट इज़ Adobe Illustrator, और अगर हम वेक्टर सॉफ्टवेयर की बात करें
और कोरल ड्रॉ की बात करें तो उसमें कोरल ड्रॉ आता है जो कि कोरल कंपनी का है. So these are two type of graphics. I hope you understood all of these. We will go in depth about pixels and resolution. So let's just move forward and let's see why we have to understand it more. ठीक है. मैंने अभी ये बताया था रास्टर ग्राफिक्स आर यूज फॉर डिजिटल यूज़. सपोज कीजिए आप अपने डिजिटल यूज़ के लिए सिर्फ ऑनलाइन या इंटरनेट के लिए आप कुछ बना रहे हो जो कि स्क्रीन्स पर ही विजिबल होगा, ना कि वो प्रिंट कराया जाएगा, तो आप मोस्टली क्या यूज़ करते हो, आप रास्टर ग्राफिक्स को प्रेफर करते हो. सिमिलरली आप अगर प्रिंट कराने के लिए आप कुछ बना रहे हैं कि आपने बैनर बनाया या फिर आपने पोस्टर्स बनाए हैं फॉर प्रिंट, अपने ब्राउशर्स, लोगोज स्पेसिफिकली, तो वो बनाते हो आप वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में. Now what is the most important reason for this? The main reason for this is कि जब आप रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो, आप एक डॉक्यूमेंट का साइज़ बनाते हो, चूज़ करते हो कि आई वांट टू मेक इट इनटू दिस डॉक्यूमेंट साइज़, और आप कंप्लीट करते हो प्रोजेक्ट को. लेकिन सपोज कीजिए आपने प्रोजेक्ट या एज ए पोस्टर हमने कंप्लीट कर लिया इन ए A4 शीट इन रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर. Now you can print it on a A4 graphic sheet and it will be visible. वो बिल्कुल सेम क्वालिटी में विजिबल होगा जितना उसका क्वालिटी आपने पुट किया था बनाते वक्त. बट इफ़ यू प्रिंट इट, अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं इन ए बिगर साइज पेपर कि लाइक A3 या उससे भी बड़ा साइज में अगर आप प्रिंट कराते हैं, नाउ द ट्रिक कम्स, नाउ द बैड पार्ट ऑफ रास्टर ग्राफिक्स कम, दैट यू कैन नॉट गेट इट प्रिंटेड ऑन ए बिगर पीस ऑफ पेपर. अगर आप प्रिंट कराते हैं तो उसकी क्वालिटी वही रहती है A4 की, और जब आप एक छोटी क्वालिटी को एक बड़े स्केल पर रीसाइज करके जूम करके अगर आप प्रिंट करते हो तो उसकी क्वालिटी कैसी हो जाती है, इट जस्ट बिकम्स बैड. ये बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी, वहाँ पर आपको पिक्सल्स का फॉर्मेशन भी दिखने लगेगा. तो इसलिए कहा जाता है कि वेक्टर ग्राफिक्स ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जिसको हम कितना भी छोटा साइज में बना लें, उसको हम कभी भी रीसाइज करके किसी भी बड़े साइज़ में प्रिंट करा सकते हैं. अगर आपने A4 के लिए बनाया तो आप छोटे से छोटे साइज़ में भी प्रिंट करा सकते हैं. सिमिलरली आप उसे एक बड़े से बड़े साइज़ के पेपर पे भी प्रिंट करा सकते हैं. तो वेक्टर ग्राफिक्स आर स्केलेबल. हम कभी भी उसको स्केल करेंगे तो उसमें पिक्सल्स फॉर्म नहीं होते क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ लाइन्स एंड कर्व्स, जिसमें कभी भी हम जूम करके देखेंगे तो द एग्जैक्ट क्वालिटी हमें मिलती है हर जूम साइज़ पे. बट फॉर रास्टर ग्राफिक्स इट इज़ नॉट दैट मच ईजी. हमें पहले ही डिसाइड करना होता है कि हमें कितने साइज़ में प्रिंट कराना है और उसी हिसाब से हमें वो प्रिंट डिज़ाइन करना होता है और हम उसे प्रिंट कराते हैं, राइट. सो दीज आर टू मेन रीजंस जो कि आप समझ चुके होंगे व्हाट अबाउट रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स. सो चलते हैं आगे और देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड दैम मोर बेटर. Now there are two categories of graphics if you are just moving into the industry. So there are two dimension, 2D and 3D. So आपने लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि 2D ग्राफिक्स 3D ग्राफिक्स में क्या डिफरेंस होता है. Some of you are might be confused. So let's just understand it a little bit in depth. So 2D means 2 dimension. तो 2 dimensions में क्या होता है, जब भी हम एक 2 dimension ग्राफिक को देखते हैं तो उसमें सिर्फ width एंड हाइट हमें रिप्रेजेंट कराई जाती है या दिखती है. जैसे कि अगर आप एक रेक्टेंगल को यहाँ पर देख पा रहे होगे तो इस रेक्टेंगल में क्या है, सिर्फ एक एक्स एक्सिस है जो कि विड्थ है और एक वाई एक्सिस है जो कि एक हाइट रिप्रेजेंट कर रही है. सिमिलर लाइक मैथमेटिकल ग्राफ्स एंड कर्व्स. सो आपको सेम चीज़ यहाँ पे लिखती है 2 एक्सिस इन 2 डायमेंशन मीन्स 2 एक्सिस 2 डायमेंशन. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस फॉर विड्थ एंड वाई एक्सिस फॉर हाइट आप यूज़ करते हो. And then you can just see a flat shape of a rectangle. But talking about 3D, तो 3D में 3 डायमेंशंस आती हैं. तो जिसमें पहला होता है आपका फर्स्ट आपका एक्स एक्सिस विच इज़ टू द विड्थ. सेकेंड हो गया आपका वाई एक्सिस विच इज़ हाइट. देन थर्ड हो गया आपका जेड एक्सिस विच इज़ कॉल्ड विड्थ, विच इज़ कॉल्ड डेप्थ. ठीक है, विच इज़ कॉल्ड डेप्थ, which is third dimension. So if we talk about a rectangle in 2D graphics, in 3D graphics it becomes a cuboid.
ए रेक्टेंगल इन 2D बिकम्स ए क्यूबॉइड इन 3D बिकॉज उसमें एक विड्थ ऐड हो चुकी है. नाउ विड्थ को आप देख सकते हो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा से किया गया है कि नाउ इफ़ यू गो टू द राइट यू विल गेट द विड्थ, if you go to up using y axis you will get the height, but if you use this z axis it becomes the depth कि the front and the back के बीच में जितना भी difference है that is depth कि how far it is going कि वो कितने पीछे तक कितना उसका मोटाई है. if we talk about in Hindi that is मोटाई. now what are the directions of z axis? so directions of z axis is simple. Just like x-axis and y-axis are 90 degree perpendicular, similarly z-axis is also 90 degree perpendicular to both of the axes, but it becomes the facing direction. कि अगर आप किसी क्यूबॉइड को फेस कर रहे हो तो उसको फेस करने की जो डायरेक्शन है, ठीक है, दैट इज गोइंग फ्रॉम यू एंड थ्रू द ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट के आर पार जो एक डायरेक्शन है उसको बोलते हैं जेड एक्सिस. तो एक्स एक्सिस आपका साइड्स हो गई, वाई एक्सिस आपका हाइट हो गया, एंड देन जेड एक्सिस बिकम योर फेसिंग एक्सिस विच बिकम्स द डेप्थ. ठीक है, तो उसमें आता है आपका विड्थ, हाइट एंड डेप्थ. तो दीज आर 3D ग्राफिक्स और 2D ग्राफिक्स फ्लैट होते हैं विथ जस्ट विड्थ एंड हाइट. तो कभी भी अगर आप डिफरेंस देख पाओगे तो डिफरेंस भी देख लेते हैं अभी हम कि 2D ग्राफिक्स कुछ इस तरीके से फ्लैट आपको दिखते हैं, फ्लैट शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स, स्क्वेयर्स, लाइंस, तो कर्व्स, ये सब आपको मिलते हैं. लेकिन 3D ग्राफिक्स में आपको डेप्थ भी देखने को मिलता है, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं. तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे कि यहाँ पर एक हट का भी मॉडल है, यहाँ पर एक टैबलेट का मॉडल है, यहाँ पर एक स्फेयर है. सर्कल इन 2D बिकम्स ए स्फेयर इन 3D. इट कैन आल्सो बिकम ए सिलेंडर बट इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं. यहाँ पे मोबाइल फ़ोन विच इज़ ए क्यूबॉइड, यहाँ पर एक ये है हट विच इज़ ए क्यूबॉइड, एक स्फेयर है, एक स्क्वेयर, एक क्यूब भी है. यहाँ पर अगर हम एक स्क्वेयर को कन्वर्ट करते हैं 3D इट बिकम्स ए क्यूब. सिमिलरली आप इस तरीके से डिफाइन कर पाओगे 3D एंड 2D ग्राफिक्स. तो कभी भी आप अगर डिज़ाइन करते हो विथ 3D ग्राफिक्स तो यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विथ समथिंग विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग लाइक व्हाट इज़ इमेज. हम लोग इमेजेस के साथ कम करेंगे इन रास्टर ग्राफिक्स. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इमेज ऑल्सो. सो इमेज इज़ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग. Even if you are talking about a photograph, it is a visual representation but it is printed. But if you are talking about a photographs in digital, like a digital photograph or digital image in a on a screen or in a computer or in a mobile device or any kind of device, you will find that it also is a visual representation of something. Right? It can be anything. It can be an animal, it can be a dog, it can be a object, it can be a person, it can be anything, but it is the visual representation. And as we know already, as we have discussed, like image is made up of pixels. हम बहुत सारे पिक्सल्स को इकट्ठा करके एक साथ अरेंज करते हैं इन ए ग्रिड सिस्टम, देन इट फॉर्म्स अप ए इमेज. उसको हम अभी देखेंगे. तो इमेज आर 2 डायमेंशनल. राइट, इमेज में हम सिर्फ क्या देख पाते हैं, image is 2 dimensional. It is only having a width and a height. और एंड 3 डायमेंशन भी आप अगर इमेजेस की बात करें तो उसमें आपको 3 डायमेंशन का लुक मिलता है. तो नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड फोटोग्राफ्स आर सम एग्जांपल्स, डिजिटल इमेजेस आर सम एग्जांपल्स. We have to discuss about a computer image is a picture composed of an array of elements called pixels. Now it is a little bit more confusing definition, but it is the exact definition, technical definition that you can use for it. Like a computer image is a picture composed of an array of elements. Array is something which is called repeated pattern.
अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीटेड पैटर्न में एक रखते जाएंगे तो उसको दैट इज कॉल्ड एन एरे, ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ समथिंग विच इज सिमिलर। नाउ एरे ऑफ पिक्सल्स, जब हम किसी पिक्सल्स को एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं दैट बिकम्स एन इमेज, ठीक है। तो लेट्स जस्ट गो हियर एंड अंडरस्टैंड पिक्सल्स। हम अभी तक पिक्सल्स की बात करते हैं, बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर पिक्सल्स। So pixels are the basic logical unit of an image. It is the smallest part of an image. अगर आप किसी भी डिजिटल इमेजेस को जूम करके देखोगे तो यू विल फाइंड स्क्वायर बॉक्सेस या डॉट्स, हम उसको कहते हैं। तो आपको डॉट्स एंड स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिखेंगे, छोटे छोटे बॉक्सेस दिखेंगे। तो दैट वन बॉक्स इज वन पिक्सल एंड वन पिक्सल कंटेन्स ओनली वन कलर, ठीक है। So the basic unit of programmable color, it is only containing one color. The basic unit of programmable color on a computer display or in a computer image is called a pixel. So one pixel, as you can see here in the image also. So right here is the original image, but if you zoom in, you will come to find आपको छोटे छोटे boxes या square boxes, आपको dots वहाँ पर दिखेंगे और ईच डॉट में सिर्फ एक ही कलर है। हाँ, हालांकि डिफरेंट पिक्सल्स में, डिफरेंट डॉट्स में, डिफरेंट स्क्वायर बॉक्सेस में आपको सेम कलर मिल जाएगा, लेकिन एक पिक्सल में आपको सेम कलर, एक ही कलर मिलेगा, ठीक है। सो एवरी पिक्सल हैज़ इट्स ओन वन कलर। नाउ व्हेन यू अरेंज दोज पिक्सल इन ए ग्रिड सिस्टम, in a left to right horizontal manner and in a top to bottom a vertical manner, that forms up an image. So it is a collection of pixels that forms up an image. The number of pixels in image depends upon its resolution. तो वो हम अभी आगे देखते हैं. So now it becomes the resolution. Resolution is also a very important part in the industry of graphics, that you need to understand what are resolution, because whenever you are going to make something for different devices, for different size paper print sizes, you will have to understand the resolution part of it, right? So basically what is resolution? Resolution is the number of pixels in an image. So it is represented by width and height, okay? So it is represented by width and height. If you talk about an image which has 10 pixels from left to right in horizontal and 10 pixels from top to bottom, which is again vertical, so the resolution of that image will become the 10 into 10, मतलब pixels in width multiplied by pixels in height, so that is the resolution. So the resolution of that image becomes 10 into 10 pixels. Similarly, if we are talking about a full HD screen या full HD video या full HD image, so the resolution of that image is 1920 pixels in width multiplied by 1080 pixels in height. So that is the resolution of that image. आप YouTube पे अगर कभी YouTube पे वीडियो देखते हो आपको क्वालिटी में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, 144, 240, 360, 480, 720 and 1080, then comes the 2K, 4K, 8K if your mobile is compatible enough. So what does that represent? वो वही represent करता है resolution of that video or that image. So 720 का resolution क्या होगा? 720 pixels in height and 1280 pixels in width. So that is the resolution. So similarly अगर आप कुछ भी print कराते हो, आपको उसका फर्स्ट उसका रेजोल्यूशन एग्जैक्ट लेना पड़ता है कि दिस विल बी द रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन में मेनली आप डिजिटल इमेजेस के लिए यूज़ करते हो, विच इज़ ए पीएक्स यूनिट, पिक्सल्स यूनिट आप उसमें यूज़ करते हो. लेकिन अगर आप प्रिंट कराने के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें आप मेजरमेंट्स जैसे कि ईजी मेजरमेंट जैसे कि इंचेस, सेंटीमीटर्स, फीट, ये सब यूजेस करते हो, राइट. फॉर डिजिटल यूज़, फॉर डिजिटल स्क्रीन्स यू यूज़ पिक्सल्स. तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमेजेस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट 5 डॉट पर इंच, ठीक है. सो बेसिकली ये क्या है, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच. इसका मतलब है कि एक 1 इंच का स्क्वायर है, राइट. 1 इंच का एक स्क्वायर है
और इस 1 इंच के स्क्वायर में 5 पिक्सल्स हैं विड्थ में एंड 5 पिक्सल्स हैं हाइट में. So that is called 5 dpi dot per inch. 5 pixels in total width and height में in 1 inch. So that becomes the 5 dpi. Similarly 10 dpi is much more higher. उसमें pixels का size छोटा हो जाएगा लेकिन number of pixels becomes more. Similarly 12 dpi में number of pixels become more, size becomes less. Similarly 72 dpi 300 dpi. व्हाट इज़ दिस रिप्रेजेंटिंग? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी क्वालिटी ऑफ इमेज. अगर आपका रेजोल्यूशन कम होगा कि नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ए इमेज या नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ए इंच कम होगा, रेजोल्यूशन कम होगा, तो रेजोल्यूशन कम होगा तो क्वालिटी भी आपकी अच्छी नहीं होगी क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे टू कंटेन मोर डिफरेंट कलर्स, राइट. इफ़ यू हैव स्मॉल लाइक size of pixels, you will have more pixels. If you have more pixels, you will have more colors to define, and then you have better image. So that is why we say number of pixels. The more the pixels, the more the resolution. The more the resolution, the more the quality. The more the quality, the more the size in MB or GB the image of the image or the video. ठीक है. सो सिमिलरली आप 5 dpi, 10 dpi, 20 dpi, 72 dpi, 300 dpi में डिफरेंस देख सकते हो. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जब भी आप डिजिटल यूज़ के लिए कुछ बना रहे हो तो आप 72 dpi में मोस्टली बनाते हो. उसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहता और उसकी क्वालिटी भी अच्छी खासी मेंटेन रहती है. बट आप कभी प्रिंट कराने के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो आप उसको 300 dpi में क्रिएट करते हो ताकि प्रिंट करते वक्त इसका फुल क्वालिटी आपको मिले, फिर चाहे आप कितने ही बड़े साइजेस में उसको प्रिंट कराएं. ठीक है. हायर रेजोल्यूशंस मीन दैट देर आर मोर पिक्सल्स पर इंच एज वी सेड, रिजल्टिंग इन मोर पिक्सल इन्फॉर्मेशन. मोर इन्फॉर्मेशन कलर्स की होती है एंड देन क्रिएटिंग ए हाई क्वालिटी क्रिस्प इमेज. बहुत ही शार्प इमेज होती है इंस्टेड ऑफ लुकिंग ब्लर एंड पिक्सेलेटेड इमेज. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेजोल्यूशन. लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड as we have come to our end, so thank you so much for attending this session for the first session of this playlist. Now in the next class we'll be moving forward to different topics and we'll be learning a lot. So I'll be meeting you in next video and thank you so much for joining for today. Take care, bye bye, and we'll meet tomorrow in the same time.